Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Drishti CUET. So today myself I am Girish Venkatesh, and as you all know that you all are preparing for your economics board exams, and 11th you gave your English exams, so now you must all be preparing for your board exams for economics. So today I have come up with important questions related to macroeconomics. Important questions related to macroeconomics. And I am telling you that whatever questions which I am giving it to you, please go through those questions, and it's sure that out of the target 80 out of 80, 40 marks, as you all know, it's from the macroeconomics. So we are today targeting with regard to those 40 marks. So first of all, we must all know that in macroeconomics, देखो आप सबको ये पता ही है कि the first chapter is national income accounting and aggregates, and that chapter, its weightage is of 10 marks. So when I say national income accounting and aggregates, now in this chapter, there are two types of questions which can come. One will be theory based and the other one will be numerical based. ठीक है, theory based and numerical based. Now this chapter, it's of how much marks? 10 marks. ठीक है? And when we talk about the numerical based questions here, then we all know that there is the value added method, then there is the income method, then there is the expenditure method, and finally, one more, it is GDP deflator. ठीक है? So these are the numerical based questions which can come from here. And be sure that when we are talking about the numerical based questions, then two questions from this chapter will be coming short from the numericals part. Two questions. So I would request everyone that you must practice from each of these topics at least 10 questions each, or you can go for 15 questions each from all of these topics. Okay? Then when it comes to the theory based questions, now in theory based questions, first of all, let's talk about the differences which are very important in national income aggregates. The differences is, number one, final good and intermediate good. Number two, it's the capital good and consumer good. Number three, it's the stock and flow. Number four, you can say it's real GDP and nominal GDP. Number five, you can say it's the real flow as well as the nominal flow. So these are the differences, and also factor income and transfer income. So please remember these differences you have to do, whatever differences I told here. Second thing, जो second चीज है जो बहुत important है, that is circular flow of income, that too in two sector economy. Circular flow of income आप करके जाना है, और जब कभी भी circular flow of income का question आता है, please do not forget to make the diagram with regard to the circular flow. And in that diagram, properly mention which is the real flow, which is the nominal flow, everything. और arrow mark भी रहना चाहिए उसमें. And diagram, उसके साथ you have to also write the heading, that is the title of the diagram. और title क्या होगा? Circular flow of income. ठीक है? In two sector economy. In the same way, leakages और injections के भी differences आ सकते हैं. और circular flow of income में they can also ask you the three phases with regard to the circular flow of income. इसके अलावा national income aggregates में double counting
It's very, very, very important. And how to avoid double counting. वो those two steps जिससे डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जा सकता है, वो दो स्टेप्स आपको प्रॉपरली करना है. एंड दे कैन ऑल्सो टेल यू दैट यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. तो इसमें आप वैल्यू एडेड वाला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे सकते हो. जैसे फार्मर ने व्हीट ग्रो किया तो व्हीट का प्राइस एक रखा, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ उसमें वैल्यू एडेड ₹2 हो गया. देन उस फार्मर ने व्हीट को मिलर को बेचा तो मिलर उससे फ्लोर बनाया, दैट वॉज वैल्यू ऑफ आउटपुट वॉज ₹5, सो द वैल्यू एडेड इज ₹3. तो इस तरीके से आप वो एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा सकते हो. देन the third type of question, when we are doing all these methods, whether it is the value added method, whether it is the income method, whether it is the expenditure method, then in all these methods there are precautions. Please remember the precautions. They can also be asked as a theory based question in your board exams. And very importantly, when it comes to national income aggregates, what is included and what is not included. I will be coming with a special video with regard to what is included and what is not included when it comes to national income and domestic income. And because it is a theory based, it is a written examination. So for every, whether it is included part or not included part, you have to give reasons. सिर्फ लिख देना included, सिर्फ लिख देना not included will be wrong. You have to give reasons. So this is a reason based question. Reason based question in the sense you have to identify whether that income is included in the national income or included in the domestic income. If it is included, what is the reason? Same reason based question can come from final good and intermediate good. That they can say you that a car purchased by a household, whether it is a final good or an intermediate good. So you have to say that it's a final good. And why? Because it is directly consumed by the household. Then in the same way, there can be reason based question related to stock and flow. ठीक है, stock and flow से related भी reason based question है. And also when we talk about national income aggregates, then they can also ask you questions related to like जैसे मैंने आपको बोला GDP welfare है. So from there they can ask you what are the limitations to GDP welfare. Those limitations में externality सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है. Externality. Completely with regard to externality, they can ask you a 3-marker question. So when it comes to national income accounting, we all know that it is for 10 marks, and this 10 marks, it will be distributed among theory based question and numerical based question. One of the numericals, it will be of 6 marker. One of the numericals, remember it, one of the numericals, it will be of 6 markers. And these are the 4 types of numericals. And when I talk about the theory based question, I did say you that from the difference part, from the reasoning part, that is give reasons, ठीक है, and also with regard to, you can say मतलब double counting and all, ठीक है. So this is with regard to the first chapter, that is national income accounting. Then we can go to the next chapter, that is money and banking. Now money and banking is a very easy chapter, and please remember 6 मार्कर चैप्टर है ये मनी एंड बैंकिंग. ये चैप्टर 6 मार्कर चैप्टर है. अब इसमें 2 चैप्टर्स हैं, एक मनी और दूसरा बैंकिंग. So when we talk about money, so very importantly, you have to know the, you can say, features of barter system. That is the features of barter system. Got it? And very importantly, you have to know the functions of money. And when I say functions of money, then here money acts as a medium of exchange. Money
acts as a store of value, money acts as a standard for deferred payments. तो वो जितने भी functions हैं उसको properly करके जाओ. Now, when it comes to the board exams, they will not be asking you all the functions. Only one or two functions they will be asking you. Either एक function पूछ सकते हैं या वो दो functions पूछ सकते हैं. But what we हमारे साथ क्या गलती होता है, और every time what the student does is that जैसे medium of exchange पूछ लिया, now they will ask you medium of exchange for 3 marker. तो दो sentences हमने बहुत properly लिख दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक तरीके से story बनाने start करते हैं. So what is my suggestion is that instead of making stories, be prepared that whenever they are asking you functions, you are able to write each function accordingly for 3 marks. So for that, you have to have a written practice with regard to the functions. ऐसे नहीं कि function आपने याद कर लिया, दिमाग में है, बोलोगे जाके वहां लिख देंगे. नहीं, write it down. See whether you are able to write it down or not. So functions में आपको मैंने बोल रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ये सब तुम्हारा जो फंक्शंस है, ठीक है, रिमेंबर इट, जो फंक्शंस है मनी के, उसको आपको करके जाना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो इन द चैप्टर मनी देयर इज मनी सप्लाई. ठीक है, देयर इज मनी सप्लाई एंड यू कैन से components of M1. Now this money supply and components of M1, it can come in MCQ. Remember it. ये MCQ part में आ सकता है. And this time, according to me, from this money chapter, a case-based question will come. Case study based question इस बार chances है कि ये money chapter से आएगा. अब आपको लग रहा होगा केस बेस्ड क्वेश्चन मनी चैप्टर से कहां से आएगा, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन मनी चैप्टर देयर इज व्हाट, देयर इज मनी, या यू कैन से मनी क्रिएशन. ठीक है, दैट इज मनी क्रिएशन. ये मनी क्रिएशन आपको पता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू मनी चैप्टर. दैट इज क्रेडिट क्रिएशन बोल लो या मनी मल्टीप्लायर बोल लो. ठीक है, सो इन दैट यू हैव टू नो each and everything. You have to write the assumptions, then you have to give the schedule and you have to explain everything. So this is a very very important question from the chapter money. Otherwise जो features है barter system का, जैसे double coincidence of want, ठीक है, ये सब तुम्हारा जो features है, that itself is the demerit of barter system. So they can ask you the demerits also. So whatever is the feature of barter system, that is the demerits of barter system also. Got it? And functions of money जो होता है कि जो भी barter system में demerits रहा, that is the function of money. That is, money is a medium of exchange. Money is a standard of deferred payment. Money is a store of value. ठीक है, इस तरीके से. और मनी सप्लाई का डेफिनेशन और M1 के वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है, जो 3 कंपोनेंट्स है उन तीनों के बारे में मोस्ट प्रोबेबली यहां से MCQ आएगा. प्लस इन मनी चैप्टर यू हैव टू ऑल्सो गो थ्रू द डेफिनेशंस, जैसे फुल बॉडीड मनी, लीगल मनी, हाई पावर्ड मनी, फिएट मनी, ठीक है, लीगल टेंडर मनी. तो इस तरीके से आपको डेफिनेशंस, तुम्हारा छोटे छोटे डेफिनेशंस आपको पता रहना चाहिए. And very very importantly, I said you this can be asked as a theory based question, or they can also ask you a numerical based question from here. That means you all know that money multiplier is 1 upon LRR. Okay, it's 1 upon LRR. So you have, when you are talking about money multiplier, please remember that पूरा properly working आपको मनी मल्टीप्लायर का लिखना है, assumptions लिखना कभी भी मत भूलना. And this is the question from where case study can come. This is the question from where a long answer can come. So this particular question you have to go through. जैसे नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में एक्सटर्नैलिटीज वाला जो क्वेश्चन है,
जीडीपी वेलफेयर के एक दो पॉइंट्स वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये वाला क्वेश्चन यहां से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी कम टू द चैप्टर बैंकिंग, तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, ठीक है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शंस आपसे पूछेंगे, दे विल आस्क यू वन फंक्शन एंड इट विल बी ऑफ वेटेज 3 to 4 मार्क्स, तो दैट विल बी लाइक सेंट्रल बैंक के फंक्शंस आपको पता है, इश्यू ऑफ करेंसी, इश्यूअर ऑफ करेंसी, बैंकर्स बैंक, ठीक है, गवर्नमेंट्स बैंक, एजेंट, एडवाइजर, देन अदर फंक्शंस में लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है एंड सो ऑन। एंड कमर्शियल बैंक से ये जो मनी मल्टीप्लायर वाला मैंने आपको पार्ट बोला, दैट इज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। दैट इज कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मनी को क्रिएट करते हैं। तो हाउ कैन कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी, या व्हाट इज द रोल ऑफ एलआरआर? देखो, जैसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एलआरआर इन क्रिएशन ऑफ मनी। रोल ऑफ एलआरआर क्या है? We all know that LRR is what? Legal reserve ratio. And if LRR increases, then the credit creation, credit का मतलब क्या हो गया? Loan creation by the banks, it will decrease. And as the LRR decreases, then the credit creation by the commercial banks, it will increase. तो इसको आपको समझाना है कि पहले एलआरआर को 20% रख लो तो देखो कितना क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, और फिर एलआरआर को 50% रख लो, फिर देखो फिर आपका क्रेडिट क्रिएशन कैसे हो रहा है। So either you can be asked a direct question or indirect question, but यहां से ये मनी मल्टीप्लायर से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही। एंड फंक्शंस जो है बैंक्स का, दैट इज सेंट्रल बैंक के जो भी तुम्हारे फंक्शंस है, उन सारे फंक्शंस को रिटन प्रैक्टिस करके रखो, राइट इट, वेदर इट इज द फंक्शंस ऑफ मनी, वेदर इट इज द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कर लेते हैं, एंड वी थिंक दैट हमने इसको रीड कर लिया है, हमें तो पता है सेंट्रल बैंक्स इश्यूअर ऑफ करेंसी है, हम लिख देंगे 10 लाइन तो इसके ऊपर लिख देंगे। डू नॉट हैव दैट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, राइट इट डाउन 2 times, 3 times, write it down and have that 3 markers perfectly in your hand. तो ये आपका 6 marker का chapter है। Then the very important chapter comes, that is the determination of income and employment. Now this determination of income and employment, this is 12 marks. So there is a 1 6 marker question sure shot from this part. और ये determination आप इसको 3-4 parts में divide कर लो। The entire chapter divided into 4 parts. सबसे पहले यहां पे you have to know the saving function and consumption function. ठीक है, saving function as well as consumption function। और इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन में यू हैव टू नो द डेफिनेशन, यू हैव टू नो द assumption, यू हैव टू नो द लीनियर इक्वेशन, एंड ऑल्सो यू हैव टू नो द ग्राफ एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राफ। तो ये पूरा सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है कि पूरा कंजम्पशन फंक्शन आ जाएगा, पूरा कंजम्पशन फंक्शन कभी नहीं आएगा, आइदर ऑफ द पार्ट वो आपको दे देंगे। ठीक है, इन द सेम वे सेविंग फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों का ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों से रिलेटेड जो ग्राफ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कंजम्पशन सेविंग फंक्शन एंड सेविंग कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन सेविंग फंक्शन भी आ सकता है कि डेराइव कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन एंड डेराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। So this is one of the parts of the chapter, और यहीं पे you have to know the relationship between APC and APS and MPC and MPS। दोनों का रिलेशनशिप जानो, APC और APS और MPC और MPS। MCQ यहां से क्या आ सकता है? MCQ यहां से आ सकता है कि क्या APC more than 1 हो सकता है? अगर हो सकता है तो कब होगा?
क्या एपीएस मोर देन 1 हो सकता है? अगर हो सकता है तो कब होगा? दैट मींस द वैल्यू ऑफ एपीसीज एंड द वैल्यू ऑफ एपीएस and the value of MPC and the value of MPS. This is very important when it comes to the one marker MCQ. Otherwise, in answering patterns, मतलब more than one markers में आपको कंजम्पशन फंक्शन याद रखना है, सेविंग फंक्शन याद रखना है, इसके वेरियस स्टेप्स, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, assumption, लीनियर इक्वेशन, फिर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और फिर ग्राफ का एग्जाम्पल, दैट इज ब्रेक इवन, डिस सेविंग्स, ये जो पार्ट होते हैं. इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है दैट इज विथ रिगार्ड टू ADAS अप्रोच. ठीक है, एंड S is equals to I approach. ADAS approach and S is equals to I approach. और इसमें सिचुएशंस क्या दे सकता है? When AD is greater than AS, when AD is less than AS, when S is greater than I, और when S is less than I. और इन सब में explanation plus तुम्हारा ग्राफ. And very very important, from here numerical can also come. And this numerical, it can be of 6 marks. That means they can ask you to determine the equilibrium level of income, and they will be giving you the value of consumption function and the value of autonomous investment expenditure. तो उससे आपको तुम्हारा y निकालना है, या सेविंग फंक्शन का दिया रहेगा और I दिया रहेगा और आपको y निकालना है. इसके अलावा S भी निकालने को बोल देगा, दैट इज प्लान्ड सेविंग भी निकालने को बोल देंगे, या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सो दिस from this part, that is ADAS approach or S is equals to I approach, they can ask you either of the situations. या वो क्या कर सकते हैं, AD greater than AS कर देंगे और फिर बोलेंगे S greater than I. ये दोनों situations दे देंगे and they will tell you how equilibrium can be achieved. So you have to explain this situation, you have to explain this situation, and then you have to explain the equilibrium situation. Now, if it is mentioned that you have to draw a graph, you have to draw a graph, then only you have to draw a graph. Otherwise, do not waste time drawing the graph. Remember it. जो चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी चीज को करो, उससे ज्यादा करने की कोशिश मत करना. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट कम्स विथ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ठीक है. और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में के, एंड सबसे पहले K and MPC का रिलेशन, K and MPS का रिलेशन, प्लस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ K मल्टीप्लायर. इसके अलावा वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सिमिलरली टू दैट ऑफ द वर्किंग ऑफ तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर. जैसे मनी मल्टीप्लायर काम करता है वैसे ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम करता है. ओनली डिफरेंस इज दैट वहां पे LRR लिया जाता है, एंड हियर वी टेक MPC, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट हियर दैट व्हाटएवर इज वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर दैट इज अनदर पर्सन्स इनकम. तो उस तरीके से हम लोग इसको करना है. सो दिस इज व्हाट इज देयर व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. और इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में भी देयर विल बी न्यूमेरिकल. रिमेंबर इट, देयर विल बी न्यूमेरिकल. जैसे यहां पे न्यूमेरिकल में y निकालने को बोलेगा तो यहां पे दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट डेल्टा y. ठीक है, दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट डेल्टा y. सो द न्यूमेरिकल पार्ट फ्रॉम दिस एंटायर चैप्टर इज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. These two parts, यहां से 6 मार्कर के न्यूमेरिकल्स, they are very very important. ठीक है. And the last part, it comes as excess and deficient demand. Now, excess and deficient demand में one thing, definition, graph, then result, and steps to avoid it. Very important, steps to avoid. ठीक है. दैट इज, अगर एक्सेस डिमांड है तो व्हाट आर द स्टेप्स टू अवॉइड इट. अब इसमें
फिस्कल मेजर्स भी होते हैं और मॉनेटरी मेजर्स भी होते हैं। आपसे सारे स्टेप्स वो नहीं पूछेंगे, दे विल नॉट आस्क यू ऑल द स्टेप्स। वो सिर्फ इतना बोल देंगे कि एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है, ठीक है, ड्रॉ अ ग्राफ विथ रिगार्ड टू एक्सेस डिमांड एंड हाउ कैन एक्सेस डिमांड बी अवॉइडेड, व्हाट आर द फिस्कल मेजर्स विच बीन टेकन। द फिस्कल मेजर्स जब भी बोलता है देन प्लीज राइट about fiscal measures कि these are the measures which are taken by the government, ठीक है, in their budget, ठीक है। और इसमें अगर एक्सेस डिमांड है तो टैक्सेशन को वो लोग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो टैक्सेशन पॉलिसी 1 पॉइंट रहेगा, दूसरा पॉइंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा, एंड तीसरा पॉइंट तुम्हारा पब्लिक डेट तुम्हारा लेगा। इन द सेम वे डेफिशिएंट डिमांड में भी होता है, बट द वेरी इंपॉर्टेंट इज द मॉनेटरी मेजर्स। जैसे मनी मल्टीप्लायर में क्रेडिट क्रिएशन है, तो क्रेडिट क्रिएशन में फिस्कल मेजर्स का कोई रोल नहीं है, क्रेडिट क्रिएशन में मॉनेटरी मेजर्स का रोल है, और उस मॉनेटरी मेजर्स में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। नाउ हियर इज वेयर एवरी स्टूडेंट गेट्स अ ब्रेक। ब्रेक का मतलब उनको थोड़ा सा डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स अच्छी तरह करके जाना, और जब आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स कर रहे हो तो प्लीज रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये 5 का डेफिनेशन करके जाना। अगेन आई एम टेलिंग, बैंक रेट, repo rate, reserve repo rate, open market operation, as well as margin requirement. And also one more thing, do not forget moral suasion. आप खुद सोचो, now I'm telling you moral suasion, कितने बच्चों को इसका definition पता है? So please go by the definitions of all of this, क्योंकि definition लिखना बहुत जरूरी है। That will make your answer presentable. और ये जो तुम्हारा steps है, this will be helpful also in credit creation, that is money multiplier वाले में भी आपको help करेगा, and it will also be helpful in this particular how to correct excess demand or deficient demand, and that too by using monetary measures. और monetary measures कौन लेता है? It has been taken by the RBI. So this is what is there with regard to the determination of income and employment. So please remember, from this chapter, 1 6-marker question will be there, 1 numerical will be there, and that numerical which will be there from this chapter, वो और में रहेगा. It will be in or format with that of national income accounting. तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग से जो 6 मार्कर रहेगा और यहां से जो 6 मार्कर रहेगा वो और के फॉर्मेट में रहेगा। गॉट इट? और थ्योरी पार्ट भी इसमें बहुत स्ट्रांगली आपको करना है, बहुत अच्छी तरह करना है, और ये जो स्टेप्स टू करेक्ट मैं बोल रहा हूं, करके जाओ करके जाओ। और ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है या जो रिलेशनशिप है, ठीक है, और न्यूमेरिकल यहां का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एडीएएस अप्रोच, हाँ ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि कभी कभी क्या होता है, एडी के बदले वो लोग एग्रीगेट स्पेंडिंग दे देगा, ठीक है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। एग्रीगेट डिमांड इज आल्सो रेफर्ड एज एग्रीगेट स्पेंडिंग, इट इज आल्सो रेफर्ड एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो उस तरीके से इसको पूरा करके जाना है। और इसमें इस चैप्टर में प्रैक्टिस द ग्राफ, प्रैक्टिस द ग्राफ, प्रैक्टिस द ग्राफ। दिस इज व्हाट आई विल टेल यू ऑलवेज कि आपको ग्राफ बनाना जानना चाहिए, क्योंकि ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे चैप्टर्स में। एंड देन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज, अब हम लोग 3 चैप्टर्स कर लिए हैं, वी हैव डन 3 चैप्टर्स। नेक्स्ट चैप्टर इज गवर्नमेंट बजट, ठीक है। नाउ दिस गवर्नमेंट बजट, प्लीज रिमेंबर अगेन, इन दिस गवर्नमेंट बजट दिस इज ऑफ 6 मार्क्स। और गवर्नमेंट बजट में फिर से एक थ्योरी होगा और एक तुम्हारा न्यूमेरिकल हो। नाउ न्यूमेरिकल, इट कैन बी विथ रिगार्ड टू रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, एज वेल एज प्राइमरी डेफिसिट। दिस इज द रेवेन्यू न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। और थ्योरी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, very 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 important।
एक ऑब्जेक्टिव तो 100% आएगा, या आपको कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे दे, कोई एक पैराग्राफ दे दे और उसमें से दे कैन टेल यू दैट आइडेंटिफाई विच आर द ऑब्जेक्टिव्स which are being mentioned here with regard to the government budget. तो जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्टिव को समझा भी करो. जैसे फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. तो रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ गवर्नमेंट कैसे कर रहा है? थ्रू इट्स बजट. वो क्या कर रहा है? टैक्सिंग कर रहा है रिच पीपल को, और वही टैक्सेस से पुअर पीपल को सब्सिडाइज रेट्स पे गुड्स दे रहा है. सो प्लीज रिमेंबर दैट देयर आर 4 to 5 तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स है. उसमें से 4 ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको भी पता है, पूरे साल आप पढ़ रहे हो, इतना तो आप भी जज करो कि वो 4 ऑब्जेक्टिव्स कौन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस 4 ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह एंड वंस अगेन आप उसको रिटन प्रैक्टिस करके जाओ. सिर्फ रीड नहीं करना है, रिटन प्रैक्टिस भी करना है. यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. आज तुम्हारा 13th है. देयर इज स्टिल 6 days, 5 days लेफ्ट. तो 5 days में बहुत कुछ हो सकता है. देयर इज नथिंग एल्स. तो ऑब्जेक्टिव्स आपको है. सेकेंड इज डिफरेंस. अब डिफरेंस में क्या क्या डिफरेंस आ सकता है? सबसे पहला रेवेन्यू रेसिप्ट्स एंड कैपिटल रेसिप्ट्स. दूसरा टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रेसिप्ट्स. तीसरा डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस. फोर्थ डिफरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस आपको बहुत बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिगार्ड टू द डिफरेंसेस ऑल्सो. इसके अलावा अगर हम लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो इस चैप्टर में रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है. रीजन बेस्ड इन द सेंस कि आइडेंटिफाई विच इज रेवेन्यू डेफिसिट, which is which is revenue receipt, which is capital receipt, which is revenue expenditure, and which is capital expenditure. So whenever you are identifying, you have to give the reason, and the reason is what? The definition of that particular topic. तो इसीलिए रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है. एंड फाइनली यहां पे आपको पता रहना चाहिए implications of fiscal deficit. ठीक है, implications of revenue deficit and implications of primary deficit. So this is what is there with regard to government budget. गवर्नमेंट बजट बहुत ही आसान चैप्टर है, बट इसके ऑब्जेक्टिव्स को रिटन प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है. एंड द लास्ट चैप्टर, इट इज बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज. देखो, बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज फिर से 6 मार्कर क्वेश्चन है, चैप्टर है. बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज में फर्स्ट अगर आप बीओपी की बात करोगे तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी. नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और इसके कंपोनेंट्स और इसके कंपोनेंट्स. ठीक है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, इन दोनों के कंपोनेंट्स. यह आपसे पूछ सकता है करंट एंड कैपिटल के डिफरेंस. देखो, मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं नजर आ रहा है, बट वॉट एवर आई एम सेइंग दैट इज लाउड एंड क्लियर टू यू. तो इन दिस बीओपी चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस में अगर आप सोचोगे तो बीओपी और बीओटी का डिफरेंस, कैपिटल अकाउंट बीओपी और करंट अकाउंट बीओपी का डिफरेंस, प्लस वेरी 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 इंपॉर्टेंट autonomous items of BOP and accommodating items of BOP. This difference is very very important. Autonomous items of BOP and accommodating items of BOP, very very important. और जब हम capital account BOP करते हैं तो उसके components हमें याद रखना चाहिए. जब हम current account BOP करते हैं तो उसके भी components हमें याद रखना चाहिए. And that is which will come under the credit side, which will come under the debit side. Now here also they can ask you reason based question. यहां पे भी आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जैसे मोबाइल फोन्स आपने इंपोर्ट किया चाइना से,
So whether it will be credit or whether it will be debit. So it will be debit. Why? Because it leads to outflow of foreign currency. So you have to know which one comes under the credit and which one comes under the debit. And it's very, very important. मुझे जो लगता है कैपिटल अकाउंट बीओपी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. इसके अलावा जो तुम्हारा रिजर्व्स है, ठीक है, दैट इज द रिजर्व्स विथ रिगार्ड टू फॉरेन एक्सचेंज, उसमें जो विड्रॉवल होता है, उसमें जो डिपॉजिट्स होता है, वो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपको लग रहा होगा कि बीओपी में न्यूमेरिकल क्या आ सकता है, तो वन मार्कर न्यूमेरिकल आ सकता है, एंड दैट इज फ्रॉम द बीओटी चैप्टर. और बीओटी इज व्हाट? इट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स. ठीक है. और उसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर है, अब फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर थोड़ा सा बहुत मतलब टेक्निकल चैप्टर है. तो फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में जो मेरे अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, जैसे वो बोल देगा $1.40, ठीक है, $1.40 एंड $1.50. तो अब वो बोलेगा व्हाट इज दिस, वेदर इट इज डेप्रिसिएशन of domestic currency or appreciation of domestic currency. और इसके कारण what will be the effect on export, what will be the effect on import, what will be the effect on aggregate demand. Please remember, अगर export बढ़ेगा तो aggregate demand भी बढ़ेगा, और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, बिकॉज एक्सपोर्ट एग्रीगेट डिमांड का भी एक पार्ट होता है, और यही एक्सपोर्ट नेशनल इनकम दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड में नेट एक्सपोर्ट्स के रूप में रहता है. तो प्लीज रिमेंबर, वॉट एवर विल बी द रोल, whatever will be the direction of exports, that will be the direction of aggregate demand, and that will be the direction of national income. एंड प्लीज रिमेंबर, यहां पे डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन के रूप में पूछा जा सकता है, या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इनके डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, या इनसे दो दो मेरिट्स और दो दो डीमेरिट्स पूछा जा सकता है. बट प्लीज गो बाय द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट विच इज डन बाय द आरबीआई, जहां पे आरबीआई बल्क बायर और बल्क सेलर के रूप में रोल प्ले करता है. और उससे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि $1.40 था, $1.30 था, तो व्हाट रोल विल द आरबीआई प्ले नाउ हियर, वेदर इट विल बी बल्क बायर और वेदर इट विल बी बल्क सेलर. तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है. इसके अलावा फ्रॉम हियर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इन द सेंस ये डीडी और एसएस है, एंड यहां पे अगर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट लेता है तो इक्विलिब्रियम जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले $1.40 है, $1. दैट मींस इफ देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट in the demand for foreign exchange, or if there is a leftward shift in the demand for foreign exchange, then what will be the effect on exchange rate plus exports plus imports? ये सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है. या what will be the effect on the in domestic currency, whether it will be appreciation or whether it will be depreciation. तो ये सारा concepts आपको clear रहना है. So overall I have discussed with you all the important questions with regard to macroeconomics. Please remember, macroeconomics kabhi bhi aap start kar rahe ho. For example, you're going to start it today. How to start macroeconomics? That also I'm telling you. First, take out money and banking. मनी एंड बैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां सब कुछ आप बहुत आसानी से कर लोगे, बट प्लीज राइट एंड डू इट. ठीक है. देन टेक अप गवर्नमेंट बजट, एंड उसके बाद you can go on with national income aggregates, then determination of income and employment, and finally BOP and foreign exchange. So जो छोटे chapters है उसको पहले करो और बाद में बड़े chapters को करो. And please remember, this was the video where I discussed each and every chapter. I said you what are the important questions from each and every chapter. I hope this video, it will be very helpful for you. And please
do, if you have subscribed to the YouTube channel of Drishti CUET, then it's very good. If you're not subscribed, just press the button out there of the subscribe button. And please subscribe the channel, because we are coming up with more new videos with regard to the board exams, videos with regard to the numericals, videos with regard to Indian economic development के important chapters, कहाँ से क्या आ सकता है, ये भी मैं आपके साथ discuss करूंगा. So hopefully this video is very very helpful for all of you. आप सबको समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है. एंड प्लीज रिमेंबर, न्यूमेरिकल्स को अपने कमांड में रखो, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आप लिख के रखना, इट विल बी लाइक 12 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स रहेंगे. तो 12 मार्क्स इज नॉट दैट लेस अ मार्क. 12 मार्क्स को आपको अच्छा करना है. सो वी आर कमिंग अप with a numerical video also very soon. So thank you all and see you in the next video. Till then, have a nice day and do prepare, work hard and written part पे ज्यादा ध्यान दो, because वहां पे भी जाकर आपको लिखना ही है. written part पे ज्यादा ध्यान दो and do not think कि बहुत दिन बचे हुए हैं, 5 दिन बचे हुए हैं, बहुत कुछ कर लेंगे. Do not have overconfidence. Just stick to your target, that is 80 out of 80, and for that 80 out of 80 you have to give your 100%. And your 100% is what? To open your books, to go through the chapters, to write each and everything, to draw each and every graph, and then you see you will get 80 out of 80. So see you in the next video. Till then, thank you. Have a nice day.